ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం. ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్న ఈ స్పెషల్ గెస్ట్ పేరు చెప్తే మీకు ఎన్నో సినిమాలు, ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలు, ఎందరో హీరోలతో కాంబినేషన్ అవన్నీ కూడా చకామని మీకు అన్నీ గుర్తొస్తాయి. ఏ సినిమాలో ఆయన నటించినా కూడా ఆ క్యారెక్టర్కి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది, ఆ క్యారెక్టర్కి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఆ క్యారెక్టర్ ఆయన నటించిన విధానం వల్ల ఆ సినిమా సక్సెస్కి ఎంతో హెల్ప్ అవుతుంది. ఆ నటుడే సూపర్ డూపర్ హిట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ మన లవ్లీ షియాజీ షిండే గారు ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు. మనం ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆయన అనుభవాలు, ఆయన కెరీర్లో ఉండే ముచ్చట్లని తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్తే. నమస్తే. హై డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు నమస్తే. నమస్తే. మీరు తెలుగు మాట్లాడుతుంటే చాలా ముచ్చటగా ఉంది వినడానికి. కానీ మీరు ఇక్కడ ఈ లొకేలు అసలు ఇంతవరకు ఎప్పుడూ చూడని మంచి లొకేషన్లో ఉన్నారు మీరు. చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేయడం మరి ఒక స్పెషల్గా ఫీల్ అవుతుంది, ఒక స్పెషల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు కూడా. ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు ఇన్నాళ్ళు అయింది కదా తెలుగులోకి వచ్చి. తెలుగులో మీరు ఒక మహారాష్ట్ర నటుడై ఉండి మీరు ఇంతే బిజీగా ఉన్నారండి? ఇంత పాపులర్ అయ్యారా మహారాష్ట్రలో? ఇక్కడ తెలుగులో పాపులర్ అయినంతగా ఎంత లేదు, కానీ మహారాష్ట్ర ప్రేక్షకులకు నేను తెలుసు. కానీ ఆంధ్రాలో అందరూ ప్రేక్షకులకు ది ఫీల్ కి ఐఎమ్ లైక్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అలాగా. సో మీరు ఓన్ చేసుకున్నారా తెలుగుని అంత బాగా, తెలుగు ఇండస్ట్రీని? మై ఫస్ట్ చాయిస్ ఇస్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ, దెన్ అదర్ చాయిసెస్. ఇస్ ఇట్? నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తా. ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో ఒక సినిమా వచ్చింది, తెలుగులో ఒక సినిమా వచ్చింది, డేట్స్ క్లాష్. ఏ సినిమా చేస్తారు మీరు? नो कोई भी लैंग्वेज हो जिसको मैंने फर्स्ट कमिट किया उसको मैं ఓకే ఫస్ట్ ఏదైతే కమిట్మెంట్ ఇచ్చారో అదే చేస్తారు. आधे చేస్తారు. ఓకే. కానీ अंदर मतलब आपको बताता हूँ, सलमान खान का एक फिल्म आया था. ओके. वो पोखरी के ऊपर था. ओके. डेट्स क्लैश. ओके. और कन्नड़ का फिल्म भी सेम डेट में था. ओके. तो वो छोटा फिल्म था, वो बहुत हिंदी का मतलब हिंदी का बड़ा मानते हैं, कन्नड़ का छोटा मानते हैं ना. यस. तभी तो ऐसा बॉलीवुड के बाद बॉलीवुड का बहुत मानते हैं. तो मैंने बोला वो प्रोड्यूसर को कि डेट चेंज मत करो. वो सुन रहा था कि नहीं सलमान खान आ रहा है, आप डेट ऐसा करो. मैंने बोला सलमान खान हो कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो, हाँ मैं डेट इनको दिया है, मैं इनका काम करूँगा ना. इतना सिंपल है. ఓకే. तो वो कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है. వాళ్ళకి కోపం వచ్చి ఉంటుంది మీ వాళ్ళకి. ఎందుకో నేను ప్యూర్గా ఉన్నాను. నేను सलमान खान कहते నేను चीटिंग ఎందుకు చేస్తున్నా? किसी के साथ में चीटिंग क्यों करूँ? सलमान खान है तो क्या हुआ? सलमान खान खुद तो नहीं होता ना इसमें, उसका नाम लेके बाकी लोग इसका धंधा करते हैं. हाँ है कि नहीं? ओह सलमान खान डेट है ऐसा है. सलमान खान क्यों बोलेगा? वो तो बेचारा अच्छा है. तेलुगु में किया वो टाइम में, पोखरी किया? नहीं कन्नड़ सिनेमा कर रहा था, लवंकुश. ओके. और पोखरी का रीमेक हिंदी में बन रहा था. ఓకే. ఓ సల్మాన్ ఖాన్ के साथ. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు కెరీర్ బిగినింగ్ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటి తెలుగులో మీరు కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అసలు ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ అన్నది మీకు ఎట్లా వచ్చింది సార్? నేను ఇప్పుడు కలకత్తా మెయిల్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నా. కలకత్తా మెయిల్ అదే టైంలో చిరంజీవి ఫిల్మ్ రీమేక్ చూడాలని ఉంది. అదే ఫిల్మ్ రీమేక్ హిందీలో జరుగుతుంది. ఆ టైంలో సుధీర్ మిశ్రా డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అరవింద్ అండ్ అశ్విని దత్. సో అదే టైంలో చిరంజీవి ఫిల్మ్లో న్యూ విలన్ కావాలి అంటే నా నామ్ సజెస్ట్ చేశాను కదా. तो मैं फर्स्ट फिल्म ठाकुर. तो मैं इधर आया, तो फर्स्ट डे शूटिंग चिरंजीवी सर asked me, are you comfortable? And I said, no, I am not comfortable. Why? Because language. I don't know pure language, here language. Then what to do? I'm theatre actor. So give me one day for one scene. I understand, I learn. Then I'll act. No. Okay. So they gave me time. PV Vinayak sir and Chiranjeevi sir, and they sent like one assistant to teach me language. Okay, training करने के लिए. Yeah. वो पहले चांस था Yeah. तेलुगु में. So dubbing time also
they wanted to dub in some other dubber because I am not from Telugu industry. Then I asked Chiranjeevi sir, Vinayak sir, if I'll dub my character, then it will be different characters. If dubber will dub now, so స్లాంగ్ బి తోడా అలగ్ రాతా अलग रहता, हाँ, స్పెషల్ రాతా special रहता. సో వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారా మీరు? Then 15 days I was dubbing that time. ఓ But in Tagore, no, all Andhra people know एक new villain आया करके. ఓకే ఎస్ టెగూరు తర్వాత మీకు ఎవరి ఇతను అనే ఒక రికగ్నిషన్ అయితే మీకు వచ్చింది బిగినింగ్. తర్వాత మీకు ఆపర్చునిటీస్ బాగా వచ్చాయండి ట్యాగూర్ తర్వాత? Tagore తర్వాత అదే టైంలో ఒక ఇయర్లో 10 ఫిల్మ్ ఆఫర్ ఆయా. అబ్బా గ్రేట్ నెంబర్. గ్రేట్ నెంబర్. 10 ఫిల్మ్స్ ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కి రావడం అంటే చాలా గ్రేట్. ఆ తర్వాత ఠాగూర్ తర్వాత ఒక 10 year every year 10 to 12 films offer was there. So every director is taking me again and again. Puri Jagannath ho, Vinayak ho, Shinu Vaitla, any director they are taking me again and again and again. అయ్యో అసలు మీరు ఒక టైంలో మీరు లేకుండా సినిమాలు లేవు, తెలుగు సినిమాలు. మీరు ప్రతి సినిమాలో డైరెక్టర్ ఎవరైనా హీరో ఎవరైనా మీరు మాత్రం కంపల్సరీగా ఉన్నారు కదా. Yeah, yeah. ఇప్పుడు ఆ టైంలో మీకు మరి అదర్ లాంగ్వేజ్ ఫిల్మ్స్ వచ్చినప్పుడు క్లాష్ రాలేదండి? బట్ కంప్లీట్గా మీరు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి కమిట్ అయిపోయారా? Telugu industry, Tamil industry, that time I was doing Tamil, Telugu, Marathi also. But top Telugu, then second Tamil, then Kannada, then Marathi. లాస్ట్లో ఉంది మరాఠా. Marathi, yeah. Marathi that time very small budget film, and this is very big industry, and I'm always busy with Telugu. ఎస్ అందరూ పెద్ద స్టార్స్. Yeah. మహారాష్ట్రలో ఇలా ఉంటుందండి ఇంత స్టార్ సిస్టమ్? Maharashtra only subject oriented films. ఓకే. Because domination of Hindi film, everybody want to watch హిందీ ఫిల్మ్స్ ఓన్లీ. Yeah. మహారాష్ట్ర సినిమాలకి అంత పాపులారిటీ ఉండదు Comparatively. కంపారిటివ్లీ. Yeah. బట్ అక్కడ కూడా ఉంటాయా పెద్ద పెద్ద కమర్షియల్ బ్లాక్ బస్టర్స్? Blockbusters, rare blockbusters. ఓకే. Yeah. Subject oriented good films are there, but not a comparatively Telugu, Hindi, Tamil, no. అంటే ప్యారలల్ ఫిల్మ్ లాగా ఉంటాయి, Parallel film laga. ఆర్ట్ ఫిల్మ్స్ లాగా Films laga. అంతే. Yeah. కానీ మన లాగా కమర్షియల్ గా Sometimes once in a year. అదే మన హీరోలు డిషిమ్ 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 రైన్ సాంగ్స్. Marathi people they doesn't like that. అవునా? నచ్చదా వాళ్ళకి? అంటే వాళ్ళది ఎంతసేపు స్టోరీ ఓరియంటేషన్ Yeah. అట్లాగా ఆర్ట్ ఫిల్మ్ అప్రోచ్, రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ అట్లా ఉంటాయేమో కదా. ఓకే. అంటే లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఫిల్మ్స్ ఉండవు వాళ్ళకి? ఉండదు. Yeah. ఉండవు. అంటే ఇంత డెవలప్ అయ్యి అవతల బాలీవుడ్ డెవలప్ అయింది, మలయాళం డెవలప్ అయింది, కన్నడం కూడా వాళ్ళు కూడా మొదట్లో అన్ని ఆర్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ చేశారు. కన్నడం, మలయాళం అయితే అసలు కంప్లీట్గా వాళ్ళు అంత ఆ ప్యారలల్ ఫిల్ము ఆర్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్సే చేశారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా అందరూ పెద్ద బడ్జెట్లకు వచ్చేసారు సౌత్ ఇండియాలో. అయినా మహారాష్ట్రలో ఇప్పుడు లాస్ట్ 3-4-5 years నుంచి ఆఫ్టర్ నాగరాజ్ మంజుడే, మహేష్ మాంజరేకర్, అండ్ దెన్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో జరుగుతుంది అక్కడ. ఎంత బడ్జెట్లు ఉంటాయండి నార్మల్గా అక్కడ? పెద్ద బడ్జెట్ అంటే ఎంత బడ్జెట్? 30 కోట్లు ఉంటుందా? 30 అంటే 30? 30-20. ఓ 20 ఈజ్ బిగ్గర్ బడ్జెట్. హెవీ బడ్జెట్ లైక్ బాహుబలి. Bahubali. Yes. So because there is no business that much, no. బిజినెస్ లేదు. Yeah. మహారాష్ట్ర చాలా స్మాల్ టెరిటరీ కదా. Territory is big, but all they territory mean theater people they give preference to Hindi film. If there is one film is running good, still they are giving dates to the Hindi films. That is the problem. ఓకే. సో హిందీ ఫిల్మ్ డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ. అంటే నార్త్ బెల్ట్ అంతా హిందీయే కదా. ఇప్పుడు మనకి హైదరాబాద్లో ఏదైనా మంచి హిందీ సినిమా వస్తే చాలా పెద్ద హిట్ అవుతాయి. ఇక్కడ జవాన్ వచ్చింది, బ్రహ్మాండంగా ఆడుతుంది జవాన్. హిందీ సినిమా వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఆంధ్ర తెలంగాణలో కూడా బాగా ఆడతాయి హిందీ ఫిల్మ్స్. మొదటి నుంచి మనం తీసుకుంటే షోలే కానీ, యాదంకి భారత్ కానీ ఇవన్నీ పెద్ద హిట్స్ మనకు కూడా ఇక్కడ. ఇప్పుడు మీరు అక్కడ చేసే క్యారెక్టర్లు మహారాష్ట్రలో మీ ఓన్ నేటివ్ లాంగ్వేజ్లో మీరు చేసే క్యారెక్టర్లు ఇలాంటివేనండి? హీరోలు గట్టా ఏమైనా చేస్తుంటారా మీరు అక్కడ? హీరో అక్కడ నేను ఇప్పుడు
4-5 films is hero laga చేశాను కదా. అంటే మీరు లవ్ చేస్తారా అందులో? లవ్ సీన్స్ గట్ట ఉంటాయా మీకు? One film was there, 2 films love scenes and all that, beginning films, but not commercial film. ఓకే, బట్ లవ్ సీన్స్ ఉంటాయి. Yeah, love scenes, but parallel cinema laga. ప్యారలల్ సినిమా, Genuine, original, realistic. ఓకే. Yeah. అంటే చాలా సెన్సిబుల్ ట్రీట్మెంట్స్ Treatment, yeah. ఎక్కట్లాగా మనం శ్రీశ్వరుడిని సాంగ్స్ Yeah, suddenly song and dancing, no. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. మీరు లవ్ చేశారంటే, ఎందుకంటే మీరు తెలుగు సినిమాల్లో అన్నిట్లో కూడా దాదాపుగా కొన్ని నెగిటివ్ రోల్స్, కొన్ని పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్స్ ఇలాంటివి కదా చేస్తారు మీరు. Yeah. షాజీ షిండే అంటే డైలాగులతో ఎక్కువ డైలాగులు ఉండడం మీకు. Because of actually na Telugu directors, they gave me good chance. Like Puri Jagannath changed my career. I am villain. Suddenly he gave me in Super, Pokiri sometime, different characters. ఎస్. So I got different characters. So like Pokiri, people like me like anything. అయ్యో, మంచి క్యారెక్టర్. Yeah. అందులో ఆ మీడియా ఇంటరాక్షన్ సీన్ Yeah, కదా, scenes. Yeah. అది చాలా పాపులర్. అన్ని After that scene, every language, that type of scenes are coming. ఓకే. Yeah. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు అక్కడ హిందీలో చేశారా ఏమైనా అలాంటి క్యారెక్టర్లు? హిందీలో కూడా చేస్తాను. ఓకే. యా. సో మీరు హిందీ పోకిరి చేయలే? చేయలే, బికాస్ ఆఫ్ డేట్స్. కన్నడ సినిమా వల్ల? యా. లవంకుష్. సేండి. వెరీ వెరీ స్ట్రేంజ్ థింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. హిందీలో ఇక్కడ తెలుగులో చేసిన సినిమాని మీరు హిందీలో చేయలేకపోయారు. యూ కుడ్ నాట్ డూ ఇన్ హిందీ. బోనీ కపూర్ దే కాల్డ్ మీ అండ్ దే సెడ్ కి సహజ్ గారు యువర్ డేట్స్ ఫ్రమ్ 14 బట్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బై 12 and 13 ఆల్సో. ప్రభుదేవ వాజ్ డైరెక్టర్ ఐ థింక్. అండ్ ఐ సెడ్ కి ఐ am in Bangalore, so I can't come. No, Sallu is coming. तो मैंने बोला हु इज सल्लू? अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है, तुम ऑर्डर मत करो. सलमान खान होगा तो ऐसा बोलेगा नहीं ना. सल्लू ने बोला, सल्लू ने किया, ऐसा नहीं. तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता. 12 में 14 को बोला, 14 को ही आऊँगा. सो वी हैव टू गो टू अल्टरनेटिव. योर विश. ऐसा छोड़ दिया वो पिक्चर? नहीं, कुछ अगर तुम्हारे दिमाग में नसीब में है, तुम करना चाहते हो तो दिल से वो करो. कहीं नहीं जाता है. हाँ, किसी के अंडर मत जाओ. तुम्हारे हाथ में रहता है वो. हाँ, फिर क्या, अपन अच्छा है, अपने को अच्छे लोग मिलेंगे ना. यस यस, ऐसे ही चल रहा है ना माँ तेलुगु में ऐसा. या. हाँ. कितने पिक्चर्स किया था तेलुगु में अभी तक? अभी तो कर रहा अबाउट 200. ओ, ओनली तेलुगु. ओनली तेलुगु. ओनली तेलुगु. ओके. एंड स्टिल इधर इंडस्ट्री का आदमी सब फिर मांग रहे हैं आपका डेट्स Yes, के लिए. yes, yes, yes. या. अभी पूरी जगन्नाथ का, अभिलाष का, चिरंजीव का वो फिल्में चल ही रहा है. ఓకే ఓకే. మీరు చిరంజీవితో మొట్టమొదటి చేసినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్? బికాజ్ ఈజ్ ది బిగ్గెస్ట్ స్టార్ Yeah. ఇన్ ద కంట్రీ. Yeah, he said first film now you be comfortable, whatever problem just tell me. This is my vanity van. This is not for me. This is for artist. So you can also come and sit like family member. Like they behave. He behave like a family member. ఓకే ఓకే. Even Pawan Kalyan, India, Mahesh Babu, all they are big because they are good. That's why they are big. ఓకే ఓకే. You have to good, otherwise you cannot become big. ఇప్పుడు అదే మీరు ఇందాకే చెప్తున్నారు కదా, అంటే చిరంజీవి గారు కానీ, మహేష్ బాబు కానీ, పవన్ కళ్యాణ్ కానీ, వాళ్ళందరూ కూడా ఎందుకు బిగ్ అంటే వాళ్ళు మంచివాళ్ళు కాబట్టి. Good artist, good human being, and good follower to the common people. So they are big, and I am very happy with the all stars. ఓకే ఓకే. బట్ ఇక్కడ మీరు తెలుగులో చాలా బిజీగా ఉన్న టైంలో ఈ డేట్స్ క్లాష్ వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారండి? Date kosam problem from the beginning. My strategy is nobody. I don't want to ditch anybody in life. ఓకే. झूठ मत बोलो, अच्छा काम करो. तकलीफ की ये ज़िंदगी है अपनी, तो खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी आओ. अगर जाना ही है आप सबको तो थोड़ा सा खुशी दे के जाओ. थोड़ा सा खुशी दे के जाओ. और क्या चाहिए लाइफ में. अच्छा है. हाँ, तो कुछ कोई बड़ा बनता नहीं. गुलजार साहब का पोइट्री जैसे है वो. थोड़ा खुशी दे के जाओ. या. और मैं क्या मानता हूँ मालूम है, जिंदगी में सबसे बड़ा सेलिब्रिटी कौन है? तो ट्री है, ट्री, झाड़ है, చెట్టు.
बिकॉज चट्टू अपने को छाया देता है, तेलुगु में क्या बोलते हो सर? नीडा। नीडा, नीडा देता है, फलम देता है, और वो 200 ईयर्स जीता है, ब्यूटी भी देता है हमारे ब्यूटी लोकेशन भी देता है। तो चट्टू कोई भी स्टार, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी प्लेयर, कोई भी पॉलिटिशियन छाव देता है? कोई नहीं देता, कोई भी स्टार, कोई है फल देता है, नहीं देता। ऑक्सीजन देता है? नहीं देता है ना, सिर्फ वो पैसा कमाता है। लेकिन पेड़ ऐसा है, लेता कुछ नहीं और सबको लेकिन देता है, देता बहुत है। बहुत है। ऑक्सीजन देता है। अगर माँ की कोख से जन्म लेने के बाद पहला कुछ चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए। वो किसकी वजह से मिलता है? पेड़ की वजह से। अगर लेते नहीं अपन, उस दिन खत्म होते हैं अपन। ओके ना, तुम्हारे पास जब ऑक्सीजन नहीं रहता, थाउजेंड करोड़ हो, लेकिन सुबह श्वास नहीं है तो खत्म। तो बिकॉज ऑफ पेड़ की वजह से तुम इतने साल जिंदा हो। तुम बड़े नहीं है, पेड़ बड़ा है। तुमको अनाज मिलता है किसकी वजह से? पेड़ की वजह से। पेड़ बड़ा है। तो मैं मानता हूँ कि यार मेरे को सेलिब्रिटी मिल गया, क्योंकि बचपन से मेरे साथ है। मैं जब नींद में होता हूँ तो भी मुझे वो संभालता है। मैं नींद में आता है तो आदमी जैसे मर जाता है वैसा, लेकिन वो जीता है, सुबह उठता है। क्यों? ऑक्सीजन है। तो ये मान के मैं चलता हूँ और वैसे काम करता हूँ। ओके। आपका अभी वो ट्री प्लांटेशन का जो काम आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र में किया, पुणे में किया? हाँ, 2015 से मैं ये काम कर रहा हूँ। और महाराष्ट्र में 40 जगह पे देवराई, जो भगवान ने दिया हुआ देशी ये अपना क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक पेड़ जो है, आयुर्वेद, वो सब उसको देवराई बोलते हैं। देवराई। वो देवराई पुरान काल से है, हज़ारों सालों से सब जगह, आंध्रा में है, ऑल ओवर इंडिया है, सब जगह है। तो पुराने लोगों का वो मैं प्रिजर्व करना चाहता हूँ और नया बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ। तो उसमें बहुत आइडिया है जो तेलुगु इंडस्ट्री, तेलुगु स्टार्स, तेलुगु पॉलिटिशियन, तेलुगु प्लेयर, इन लोगों ने भी अडॉप्ट करना चाहिए। ओके। मैं भी करते होंगे, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि बहुत से लोग अवेयर है उसके आगे। लेकिन मैं चाहता अभी हूँ, कैसा है उधर प्रोग्रेस हमारा, आपका अपन का महाराष्ट्र और पुणे में वो ये ट्री प्लांटेशन का प्रोग्रेस कैसा है उधर? ट्री प्लांटेशन बहुत 40 जगह पे तो अच्छा चल रहा है। लेकिन एक मैं आइडिया ऐसा निकाला कि पिछले 2 साल से भगवान का प्रसाद क्या होना चाहिए, तो एक पौधा होना चाहिए, सैपलिंग होना चाहिए। तो जो देशी पेड़ है अपना, अभी क्या है, ये अपने को स्वातंत्र्य मिलने के बाद क्या हुआ, इंडिया छोड़ के बाकी के 2 लोगों देश के पेड़ बहुत आए, गुलमोहर से लेके ये बहुत, गुलमोहर पहले से मालूम नहीं था? मालूम नहीं था लोगों को। Yes, ये exactly. आया और उसको ऑस्ट्रेलियन बाबुल हो, ऐसे जो पेड़ अपने देश, फॉरेन ट्रीज से फॉरेन ट्री से अपने देश के ऊपर बहुत आक्रमण हुआ है वैसे तो। यस। तो वो देशी पेड़, तो भगवान का जब अभिषेक होता है तो अभिषेक को कंपलसरी, अगर तेलंगाना गवर्नमेंट कंपलसरी करेगा, चैरिटी कमीशन अगर कंपलसरी करा, भगवान को जो अभिषेक होता है उसको एक देशी पेड़ का पौधा देने का और भक्त को बोलने का कि ये भगवान का आशीर्वाद है। इमली का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, मैंगो का पेड़ है, बकुल का पेड़ है, पारिजातक है, वो अपने घर में, खेत में, जिधर खाली जगह है उधर लगाओ। वो बढ़ेगा तो भगवान प्रसन्न होगा। तो वो लगाएगा तो वो जाएगा, लेकिन पेड़ तो 100 साल जिएगा, 200 साल जिएगा। तो मैंगो हो, इमली हो, आंवला हो, 100 साल तो उसका फल मिलेगा। पेड़ परमानेंट है, परमानेंट है। तो ये अगर गवर्नमेंट करेगा तो कितना अच्छा होगा। तो मैं इधर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया है। ओह वेरी नाइस। आप उन लोगों से बात किया? दिया, वो सैंक्शन भी हो रहा है। अभी दगडूशेठ हलवाई, सिद्धिविनायक गणपति महाराष्ट्र, ओके, दादर, और महालक्ष्मी कोल्हापुर, तुळजापुर, वहाँ ये पौधे का काम चल रहा है। ओह अभी तो तेलंगाना गवर्नमेंट में आपसे की तरफ से सबको विनती करता हूँ, तेलंगाना आई ड्रीम चैनल की तरफ से मैं तेलंगाना गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को विनती करता हूँ, केसीआर साहब को, केसीआर साहब हमारे महाराष्ट्र में आ रहे हैं, हमारा सपोर्ट आपको मिलेगा, आप हमको सपोर्ट दो पेड़ लगाने के बारे में। बाकी पॉलिटिक्स में हमको कुछ इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ये पेड़ किसी का नहीं, सबका होता है। तो ये अगर हर मंदिर में प्रसाद करके ये पौधा जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और मैं चीफ मिनिस्टर से आई ड्रीम चैनल की तरफ से और एक बात बताऊंगा कि जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरी होती है ना, वैसे उसको एक देशी पेड़ का सीड लेके आने का कंपलसरी करो। जब वो 50 स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे तो 50 टाइप के सीड आएंगे। वो सीड
बच्चों को लगाने का सिखाओ, तो वो सीड सब लगाएंगे और वो स्कूल में 10th स्टैंडर्ड तक संभाल लेगा। अगर वो जगह नहीं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको जगह देने का, और जब उसका 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक पेड़ बढ़ेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट दो, उसको कुछ मार्क दो, और उसको तो पर्यावरण का बैलेंस बहुत अच्छा है। उसका भी मार्क्स रहना चाहिए। मार्क्स रहना चाहिए। और बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं, वो क्या स्कूल में बोलेंगे मेरा ये पेड़ इतना बड़ा है, मेरे पेड़ को पत्ते आ गए, मेरे पेड़ को फूल आया, मेरे पेड़ को फल आ गया, तो वो अपने आप सीखेंगे। क्योंकि ये एजुकेशन में किसी को भी 10 पेड़ का नाम मालूम नहीं, किसी को 10 पंछियों का नाम मालूम नहीं, किसी को 10 फ्लावर का नाम मालूम नहीं, पूरा कंप्यूटर्स के पीछे भाग रहे पूरा जिंदगी, पूरा दुनिया। तो ये इतना करोगे ना तो केसीआर साहब का नाम ये अमर हो जाएगा, ये दुनिया में अमर हो वैसे भी अमर होगा, लेकिन अभी तो पूरे 1000 साल तक रहेगा। केसीआर साहब ने ये लाया कि बच्चों को कंपलसरी सीड लाने को बोला, हर भगवान के टेम्पल में पौधा देने को बोला, जो सिर्फ अभिषेक करते, तो हर मंदिर में हर महीने में 3-4-5 हज़ार पेड़ जाएगा, क्योंकि हर भक्त को देगा, वो किधर फेंकेगा तो। लेकिन जो अभिषेक होता है तो आधा घंटा वो पेड़ की पूजा करता ना, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, तो उससे लगेगा तो पेड़ के प्रति प्यार बढ़ेगा। और वो ऐसे भी छाव देता है, आंवला लगेगा तो जिंदगी भर उसको सी जीवन से जैसा बोलते ना केसीआर साहब का MLAs, केसीआर साहब का कैडर, केसीआर साहब का गवर्नमेंट, केसीआर साहब का वो आदमी है, ये आदमी है करके, बाद में एक बार ऐसा काम शुरू हो गया ना ये हैदराबाद में, वो उनका एक बार वो सोच के ये शुरू करता है ना, केसीआर साहब का पेड़ है, केसीआर साहब का फल है, केसीआर साहब का फूल है। और जो भी बच्चा डॉक्टर, एक्टर, कलेक्टर, बड़ा साहब बनेगा तो बड़ा बन के क्या बोलेगा, मैं वो स्कूल में पढ़ता था, उधर जो इमली का पेड़ है ना वो मेरा है। फिर वो बोलेगा कि उधर क्लेम कर सकता है, बोल सकता है। तो वो कलेक्टर, एक्टर होने के बाद बोलता है तू क्या किया लाइफ में, घमंड से बोल सकता है, वो बोल सकता है, लेकिन उसको लगेगा तू जिंदगी में क्या कमाया, अभी पैसा कमाने लगा ना तू, लेकिन ये पेड़ ऑक्सीजन दे रहा है, ये पेड़ फल दे रहा है, जीवन सत्व दे रहा है, और वो सबको दे रहा है। वो नहीं बोलता मैं स्वार्थी हूँ, मेरे गाड़ी को हाथ मत लगाओ, मेरे घर को हाथ मत लगाओ, लेकिन पेड़ ऐसा नहीं बोलेगा। आप मिला है कभी केसीआर साहब से? डायरेक्ट नहीं मिला हूँ, लेकिन अभी क्या आप बताओ, मैं आऊँगा मिलने के लिए। 100% हमारा हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट विद केसीआर साहब, इनके साथ एक मीटिंग करेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। आंध्रा में पेड़ के बारे में कुछ भी करने के लिए है तो मैं रेडी हूँ। और विकाराबाद टू हैदराबाद 1000 पेड़ बैनियन ट्री के है, उधर एक नेचर्स लवर्स ग्रुप है, वो ग्रुप को मैं जाके मिला, मैं वो 1000 पेड़ देखा, उनको मैं NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के NHAI के तेलंगाना हेड को बुलाया, उधर से मैं नितिन गडकरी साहब को वो दिखाया, उनको बोला कि ये पेड़ बचाओ। महाराष्ट्र में हम लोग 200 ट्रांसप्लांट किए पेड़, जो पेड़ बैनियन ट्री है, ऐसे पेड़ जो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं उनको ट्रांसप्लांट किया, उसका मैं डेमो दिया, और नितिन गडकरी साहब को कानून में कानून में लाया। तो इधर भी लाओ, उन्होंने पसंद किया इसको बहुत पसंद किया। मतलब नितिन गडकरी जी का यूट्यूब पे देखेंगे, उन्होंने बोला ऐसा लाख सयाजी शिंदे जन्म लेना चाहिए जो पेड़ के बारे में इतना डिवोटेडली काम करते हैं, कोशिश कर रहे हैं यार। ओके, क्योंकि मुझे लगता है रहेगा तो वही रहेगा जो अगली पीढ़ी बोलना चाहिए कि हमको क्या दिया, ये ऐसे पेड़ लगाए रास्ते के बाजू में जिसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्यों लगाए। और ऐसे हमारे 100 साल के बैनियन ट्री थी, वो सब काट दिए, फेंक दिए जलाने के लिए। उसके ऊपर 500 टाइप की प्रजाति रहती है, उनको जला दिया आप लोगों ने विकास के नाम पे, तो वो नहीं करना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से करते ही होंगे, बहुत लोग इधर करते होंगे, मैं नहीं बोलता कि मैं ही करता हूँ। पहले आप KTR साहब से मिलिए। जरूर मिलता हूँ, आप मुझे अपॉइंटमेंट करके दो। 100%। कल बोलो तो कल मुझे छुट्टी है। ओके, श्योर, कल मैं आके मिलता हूँ। डेफिनेटली। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सब साहब आएंगे, उनको बोलेंगे, एक कानून होगा, GR निकलेगा, हर मंदिर में एक GR जाएगा, तो उसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पौधा बनाता है, और बहुत से लोग CSR में कर सकते हैं। हर कंपनी को बोलेंगे कि ये मंदिर को तुम सैपलिंग देना, हर महीने में 2 लाख रुपए खर्चा आता है।
इतनी है? हो तो हमसे फिनोलेक्स करके कंपनी है, उन्होंने हमको दगड़ू शेठ हलवाई कंपनी, दगड़ू शेठ हलवाई गणपति का ट्रस्ट है, उनको वो कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। उसका नाम आता है, भक्त का नाम आता है, उसका फ़ोन नंबर आता है। 1 साल बाद वही पेड़ का बर्थडे करेंगे। ओह, हर साल बर्थडे करेंगे। मैं बच्चों को बोलता हूँ तुम्हारा बर्थडे करो, साथ में पेड़ का बर्थडे करो। तरीका तो बहुत अजीब है लेकिन बहुत अच्छा है सुनने के लिए। हाँ, और हम प्रूव करके दिया है। यस। महाराष्ट्र में 40 जगह पे ऐसे पौधों का अराउंड 10 लाख पौधे लगाए, उनको बर्थडे कर रहा हूँ हर साल। वो अभी 20-20 फीट के पौधे बढ़ गए हैं। यस। तो उसके ऊपर पंछी आते। एक्चुअली हाँ, मैं बताना भूल गया, मैंने ये शुरू कैसे किया। मेरी माँ 97 ईयर्स की थी तभी गई, तो 92-3 ईयर्स की थी तभी मुझे लगा कि ज़िंदगी में माँ से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है। कोई नहीं रहता, कोई नहीं हो सकता। तो माँ को मैंने बोला तू तो ज़िंदगी में जाएगी तो मेरे को ज़िंदगी जीने से मतलब ही नहीं रखता, मैं क्या करूँ, तुझे ज़िंदा कैसे रखूँ। तो माँ को मैंने बोला एक बाजू में बीज तोला करता हूँ, एक बाजू में तुझे रखता हूँ, एक बाजू में इंडियन देशी सीड्स का सीड्स रखता हूँ, और जितने सीड्स माँ के वेट है उतने सीड्स में महाराष्ट्र में लगा रहा हूँ, ताकि मेरी माँ वो पेड़ में ज़िंदा रहेगी। पंछी आएंगे, फ्रूट आएंगे, स्मेल आएगा, छाव आएगी, तो मुझे दिखेगा कि ये मेरी माँ है। उसके रूप में धरती माँ, आपका माँ जिंदा रहेगा, कभी भी हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए मुझे उससे पेड़ लगाने से कुछ लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ लगाना है। ऐसे लोग लगाने के लिए सब अपने होना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट को मिलूँगा, स्कूल को मिलूँगा, और हर स्कूल में एक स्टूडेंट एक पेड़। नहीं, ये सोच कैसा आया आपको? माँ की वजह से आया। माँ की वजह से। माँ जा रही तो कैसे जिंदा रखूँ मैं, तो मैं उसके नाम से इतना जितना वेट है उतना पेड़ लगाऊंगा। वो पेड़ महाराष्ट्र में दिखेंगे तो मुझे लगेगा ये पेड़ में मेरी माँ है, क्योंकि सच में वो ऑक्सीजन देता है, सच में वो खाना देता है। तो माँ और धरती माँ, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, तो डरने की कोई चीज़ ही नहीं है। तो किधर भी काम करो, खुश रहो और पेड़ लगाओ और खुश रहो। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, ए ग्रेट कॉन्सेप्ट, ए ग्रेट आइडिया एंड ए ग्रेट एफर्ट। अब बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। मुझे खुशी मिलती है। बार बार बधाइयाँ दे रहा हूँ मैं इसके लिए, ये काम पे। आई ड्रीम्स का प्रोजेक्ट रखो। आप जो चाहिए ये काम पे आपको सहायता के लिए आई ड्रीम कभी भी तैयार है आपके साथ। आई ड्रीम को बोलो, हर गांव में, हर स्कूल में, हर मंदिर में अपनी अपनी जगह होती है। हर गांव का जो गायरान होता है, वो गायरान में अगर एक गांव 500 इमली लगाएगा, ओके, तो 5-6-7 साल के बाद इमली आना शुरू होगा। तो हर पेड़ का 10,000 से शुरू होगा तो 20-25 हज़ार तक हर पेड़ का इमली आता है। तो 500 इमली का 50 लाख गांव को पैसा मिलेगा। तो गांव को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जामुन का 500 पेड़ लगाओ, इमली का 500 पेड़ लगाओ, आंवला का 500 पेड़ लगाओ, मैंगो का लगाओ, सबका लगाओ, और बोलो कितना भी खाओ, चोरी करके लेके जाओ, लेकिन गांव का रहने दो। क्या करेगा, खुशी मिलेगा सबको। यस। तो ऐसा करेगा तो गांव में किसी बाहर पैसे लाने की ज़रूरत नहीं, इतना पेड़ की ताकत है नेशन में। अभी जैसा लोग और ज़िंदगी कैसा बदल गए है ना, अभी गवर्नमेंट्स भी इसको इनवाइट कर रहा है। ऐसा कोई आइडिया है, ऐसा कोई सोच है, ऐसा कोई मेहनत है, ऐसा कोई कोशिश कर रहा है इसके बारे में, ये डायरेक्शन में 100% ज़रूर गवर्नमेंट्स अभी तैयार होने का ये माइंड सेट में है अभी। एंड इधर का केसीआर अगर सोचेगा ना उनके बारे में, वो बहुत ये ऐसा चीज़ के लिए बहुत विशाल रूप से वो सोचता है, इस पे नज़र डालते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, टाइम लगा के इन लोगों के बताते हैं। इनका वो मानसिक विकास का आदमी है बेसिकली केसीआर साहब, और उनका बेटा केटीआर भी ऐसा ही उनका पैरेलल है, ऐसा वाला बहुत एडवांस्ड थिंकिंग एंड वेरी वेल मैच्योर्ड माइंडसेट्स। इधर आपका काम एक बार आपसे उन लोगों से मिलेंगे ना आप, बहुत आसान हो जाता है काम करना। एंड आपका नाम पेड़ के साथ आपका नाम भी अमर रहेगा। नहीं वो बात है, लेकिन मैं ज़रूर मिलूँगा
तेलंगाना गवर्नमेंट को, केसीआर साहब को, और आप कल का भी मीटिंग रखेंगे तो कल मैं फ्री हूँ। Sure. 2 तारीख का मीटिंग रखेंगे तो भी मैं फ्री हूँ। फिर मैं आगे शूटिंग 20 तारीख तक शूटिंग कर रहा हूँ, लेकिन कल 2 तारीख को इवनिंग, कल पूरा डे ये मीटिंग हो जाएगा। अगर मेरा कुछ भी उसके बारे में सहायता होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन अभी तक मोड में नहीं आया। पहले अगर तेलंगाना गवर्नमेंट करेगा, जीआर निकालेगा, स्कूल को निकलेगा जीआर, सभी टेम्पल को निकलेगा ना, तो फैंटास्टिक वर्क होगा। बहुत वाइड एक्टिविटी रहता। मतलब हर भगवान का टेम्पल का कितना जगह होता है, पानी होता है, खुशी होती है, वो सब जाएगा। जब ये लोग भक्त लोग आते हैं ना, वो लोग सब देख के बहुत खुशी रहता है इसको लोग। देखो, एक नारियल फोड़ते हैं भगवान को तो 100 नारियल का खून होता है कि नहीं? जरूर। एक नारियल फोड़ते हो तो उसको 100 साल आने वाले 1000 नारियल का खून होता है कि नहीं? तो उससे बेटर है एक पौधा 2 नारियल का, और बोलो कि ये लगाओ, तो भगवान की तरफ से गया हुआ नारियल का पेड़ एक फैमिली जिंदगी जी सकती खुशी से। एग्जैक्टली। तो ये फोड़ने से, ये हार डालने से, ये लड्डू देने से, वो चालू रहने दो, हमारा किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन एक पौधा अगर जाएगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ा बन जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा हो जाएगा, और लेकिन वो एक रिकॉर्ड तो रहेगा। हाँ, एक रिकॉर्ड तो रहेगा। ये भी इतना पवित्र रिकॉर्ड है, ये पवित्र काम है करने के लिए। मैंने अभी इसको ऑब्जेक्शन करने के लिए कोई नहीं इसमें। हाँ, इसमें कुछ ना अपना टेंडर है, ना अपना परसेंटेज है, ना अपना कुछ नहीं ये है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ किकबैक्स नहीं रहता। प्लीज कुछ नहीं चाहिए हमको। इसमें बारे में मैंने एक तेलुगु में एक पोएम किया है, मैं आपको भेजता हूँ, आई ड्रीम्स पे वो लगाओ। ओके। वो है ना, मराठी में ऐसा है कि हमारे अरविंद जगताप करके पोएट है, उन्होंने लिखा है कि मराठी में बोलता हूँ, ऐसा है की सूर्य उगवतो तेव्हा फक्त दिवस सुरू होतो, पण झाडे उगवतात तेव्हा चांगले दिवस सुरू होतात. झाड हमखास फळ देतं, फूल देतं, पान देतं, पक्ष्यांना उघडं रान देतं, श्वासासाठी ऑक्सिजन देतं, सगळ्या गोष्टी देतं झाड. आईच्या मायेनं झाडच करतं आपलं लाड. झाड आहे औषध, झाड आहे देव. पुढच्या पिढीच्या आरोग्यासाठी 10 झाडं लावून ठेव, कारण झाड आहे तर आपली सुद्धा वाढ है. तो ये पोएम मैंने तेलुगु में भी किया है, उसको शूटिंग किया है, मैं आपको देता हूँ, ये भी लगाओ. उसके बाद इंटरव्यू कौन लिखा है तेलुगु में? तेलुगु में वो नेचर लवर्स ग्रुप के लोग हैं, Okay. उनके किसी ने मुझे करके दिया. Okay. फिर मैं तेलुगु में बना के दिया, ताकि तेलुगु सब लोगों को बहुत, वो अगर तेलंगाना गवर्नमेंट ये अगर स्टूडेंट्स को ये प्रतिज्ञा करके देंगे नेचर की, और वो आएगा तो उसमें इतना है कि ज़िंदगी में पेड़ से सिवा कुछ नहीं. माँ है, पेड़ है, तो अगली पीढ़ी है. वेरी नाइस. ऐसा मीनिंग है उसका. तो वो भी अगर करेंगे तो तेलंगाना गवर्नमेंट बच्चों के दिमाग में पेड़ लगाएगा, फिर वो बच्चे ज़मीन पे पेड़ लगाएंगे, जमीन पे पेड़, फिर बच्चों के बच्चे भी वो पेड़ देखेंगे, और उसमें भगवान भी देखेंगे. क्योंकि कोई भी भगवान छाव देता वक्त देखा नहीं ना, लेकिन भगवान पे नाम पे लगाया हुआ पेड़ पक्का छाव देगा. एग्जैक्टली. बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू. एंड कमिंग बैक टू आवर सिनेमा, या because you are such a wonderful, you are wonderful at heart. మీరు చాలా మంచి మంచి ఆలోచనలతో, చాలా పవిత్రమైన ఫీలింగ్స్, వెరీ సెన్సిబుల్ థింకింగ్, ఇవన్నీ మీకు ఉంటాయి కదా. బట్ మీరు సినిమాల్లో చేసేవన్నీ కూడా చాలా క్రూరమైన, క్రూయల్, క్రికెట్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఎట్లాగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎట్లా, మీరు హౌ డు యూ హ్యాండిల్ ఇట్? నేను చాలా యాక్టింగ్ కోసం నేను చాలా స్టడీ చేశాను కదా. హిందీలో, మరాఠీలో ఒక బుక్ ఉంది, అభినయ సాధన అండ్ భూమికా శిల్ప. ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఫ్రమ్ స్టానిస్లావిస్కీ, యాక్టర్స్ ప్రిపేర్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ద క్యారెక్టర్. ఓకే. 2 books are very good books. Because of that books I am become an actor. वो पढ़ के एक्टर बन गए. उसके ऊपर नोट्स बनाया, 1000 टाइम्स पढ़ाया, 6-7 टाइम में नोट्स निकाला. तो डायरेक्टर को क्या चाहिए, राइटर ने क्या लिखा है, उसका जॉनर क्या है, उसको डेप्थ कितना चाहिए. और जनरली मैं पॉलिटिशियन लोगों का रोल करता हूँ, तो मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ. पॉलिटिशियन लोगों के साथ खाता पीता बैठता घूमता हूँ, तो उनको ऑब्जर्व करके वही स्टाइल मतलब कोई नकल से हाँ, इमिटेट वो आइडिया मिलता है. उनका लुक, उनका एग्रेसिवनेस,
बड़े बड़े रईस लोग देखता हूँ, तो उनके पास क्या रहता है, ज़्यादा तो लगता है कि मैं एक बड़े लोगों के पास होता है, Yes. फिर अहंकार होता है, यस अहंकार, और फिर मत्सर होता है, दमन रहते हैं। दमन रहता है, वो दूसरा ये छोटा है, वो मेरे से कुछ नहीं, वो को नहीं, तो वो सब मैं फिर कैरेक्टर में लाता हूँ. आपका క్యారెక్టర్ मिला के करते నార్మల్లీ మీకు ఒక డైరెక్టర్ ఆఫర్ ఇచ్చి మీకు ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన తర్వాత సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు డైరెక్టర్ చెప్పింది చేస్తారా, లేకపోతే మీరు మీ మట్టుకు మీరు ఓన్గా ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుని చేస్తారా? నేను డైరెక్టర్ చెప్తాను, అదే చేస్తాను అంతే. కానీ డైరెక్టర్కు నేను 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాను. ఓకే, 4 మోడల్స్. 4 मॉडल्स, आपको ये चाहिए, ये चाहिए, आपने ये बोला है, आपको ये अच्छा लगेगा, నేను ఇలా చేస్తా. नहीं ఇలా चाहता. फिर डायरेक्टर बोलता है कि तुमको जो करना है करो. वो बहुत खुश होता है, क्योंकि मैं उसको जो बोलता है उससे आगे लेके जाने की कोशिश करता हूँ. कभी कभी क्लैश हुआ डायरेक्टर से यही बात में? हाँ हुआ ना, वो अपना कौन से? क्या नाम, किससे हुआ था? देवदास फिल्म था ना, चौधरी वाईवीएस चौधरी. वाईवीएस चौधरी. हम लोग अमेरिका में थे, तो उसमें मैं विलन इलियाना का फादर मैं था, और दूसरी लड़की ने उसको बच्ची को सपोर्ट किया, तो उसको पकड़ता हूँ, घर जाके मारता हूँ ऐसा. तो वाईवीएस चौधरी बोल रहे मुझे और चाहिए ऐसा ऐसा, मतलब मेरा करके दिखाओ. तो बोले नहीं आप तो एक्टर है ना, तो मैंने बोले बहुत चुप बैठो ना, फिर मैं बोलता हूँ ऐसे सुनो ना. फिर ऐसा इतना हर्ष था आप? अब मैंने बहुत गुस्सा आया कि कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्टर बोलता है और करो और करो, और मतलब कितना, और डायरेक्टर क्या लिमिट क्या है इसमें और मतलब? नहीं, कुछ डायरेक्टर का प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको कुछ समझता नहीं है, फिर भी पहले सेंटेंस बोलेगा थोड़ा और चाहिए. अच्छा बताओ क्या चाहिए, और वो नहीं आता है, फिर क्यों और चाहिए. तो डबिंग के वक्त भी ऐसा होता है, थोड़ा इंटेंस करो. इंटेंस मतलब क्या है इंटेंस? क्या वाईवीएस चौधरी बताए? नहीं, वाईवीएस चौधरी एक कुछ डायरेक्टर है. वाईवीएस चौधरी का कहना था कि उनको वो ज़्यादा विगर चाहिए था, लेकिन वो लड़की ने वीक पहना था, और ज्यादा पकड़ने से वो ज़्यादा नहीं, औरत के साथ तुम कितना विगरसली बिहेव कर सकते हो ऑन स्क्रीन. यस. और जो लोग बाहर बिहेव करते होंगे वो करते, लेकिन ये गलत है ना. गलत है. लेकिन मैं चेहरे पे दिखा रहा हूँ ना, चेहरे और मुंह पे दिखा रहे हैं. मुझे दिया इंटेंस वॉइस में दिखा रहा हूँ ना, तो ऐसा कर. आपने अभिनय साधना करके आया इधर. हाँ, तो मैं बहुत मतलब मैं जब भी अभी 500 फिल्म किया मैंने, इसमें 200 तो तेलुगु में किया है. आज भी मैं फिल्म करने आता हूँ तो डायरेक्टर राइटर के सामने बैठता हूँ, आज भी मैं अपने हाथ से डायलॉग लिखता हूँ, उसका मॉड्यूलेशन समझ के लेता हूँ, उसके ऊपर वेरिएशन क्या करना है वो आज भी मैं करता हूँ. ओके. आप अभी इतने लोगों इतने डायरेक्टर से काम किया ना, ऑल बिग डायरेक्टर्स, किससे आप बहुत कंफर्टेबल रहता है? किस डायरेक्टर आपको पूरा कंफर्ट दे के करो, ऐसा करो, तुमको जैसा चाहिए ऐसा ही करो करके कौन इतना मौका दिया आपको? मतलब बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर हैं मेरे साथ. पुरी जगन्नाथ बहुत मुझे मैं पसंद करता हूँ उनको. शीनू वाइटला है, वी विनायक सर है. मतलब वो क्या है ना, अच्छे डायरेक्टर की साइन क्या होती है, वो समझाते अच्छा है, और समझाने के बाद अपन अगर समझ जाते हैं, दिल में बराबर बैठता है तो बराबर बाहर आता है. तो अभी पुरी जगन्नाथ के साथ अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, डबल स्मार्ट शंकर. डबल स्मार्ट. तो अभी हम लोग बॉम्बे में शूटिंग कर रहे थे ना, तो परसों एक वन शॉट बड़ा था, तो इमेज आया फटक से ओके. ये बोल रहे थे थोड़ा सा पूरी ये थोड़ा सा चुप, ये बराबर है, तो उनको वो समझता है, इमीडिएट समझता है ओके कि ये करेक्ट है करके. कुछ डायरेक्टर मतलब अभी वाईवीएस चौधरी की बात करो, उनको अच्छा चाहिए, लेकिन कभी कभी एक टेक 20 बार लेते हैं, तो क्या होता है ना, उसका फ्रेशनेस, जो जेन्युइनिटी, स्फूर्तता है ना, वो निकल जाती है. वो निकल जाके 2 3 4 5 मैकेनिकल बन जाता है. हाँ, मैकेनिकल बन जाता है. मैकेनिकल बन जाता है, उसमें का मजा निकल. 1 2 3 बस दैट्स लाइक यू नो. और पूरी आप बार बार पूरी जगन्नाथ के बारे में ही बता रहे हैं, और कोई डायरेक्टर पसंद नहीं है क्या आपको? नहीं, शीनू वाइटला ने मुझे कितना अच्छा कैरेक्टर दिए. वी विनायक ने मेरा करियर शुरू किया. ये बड़े बड़े स्टार रहे जिनके साथ काम करके फटाफट सबके नाम नहीं याद आ रहे, लेकिन अभी ये इनके साथ कर रहा हूँ तो ज़्यादा ना. सोच के बताइए ना, क्या हम अभी कहीं भाग रहे हैं क्या? लेकिन ये कृष्णवंशी,
लेकिन ये भी क्या 7-8 फिल्म सिनेमेटला 7-8 फिल्म पूरी जगह 10 फिल्म पूरी जगह साथ होगा विनय के साथ आपके नाम से ही वो कैरेक्टर लिख रहा है कैरेक्टर लिखने के बाद आपका सेलेक्ट नहीं है हाँ। पहले ही आपको आप नजर में डाल के नजर में रख के काम का कैरेक्टर निकल रहे हो इतना इमेज बढ़ गया आपका हाँ। वो अभी अभी कभी कभी माइनस भी होता हुआ कभी ऐसा क्या आपका जो इमेज बढ़ गया ना वो कैसी भी कर सकता है किस कैरेक्टर भी कर सकता है जो देगा वो 100% वो अच्छा करता है करके एक इमेज आता आर्टिस्ट को आपको मिला है वो हाँ, इमेज हाँ। वो कभी कभी माइनस भी होता है ये एंगल में कभी थोड़ा नुकसान हुआ आपको मैंने कभी जिंदगी में बहुत बड़ा बनने का कोशिश कभी नहीं किया है Okay. तो मेरे को कुछ बनना है मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है ये मेरा कंप्लेंट ही है नहीं मैं वॉचमैन था मैं 78, 79, 80 में वॉचमैन था तभी मैं कॉलेज कर रहा था तो 165 रुपीज़ पर मंथ मिलता था और मैं इतना बड़ा यू आर ए वॉचमैन हाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट में मेरा ज़मीन गया था हमारा डैम अफेक्टेड हूँ मैं हमारा ज़मीन डैम में गया था तो मैं वॉचमैन का जॉब कर रहा था तो अभी और कितना बड़ा बन डैम किधर है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में मेरे जमीन गांव सातारा और तालुका डैम के नीचे में आपका जो जमीन लैंड है वो गया भैया तो मुझे नौकरी लगा गवर्नमेंट की सो उतना वो टाइम में क्या कैसा सर्कमस्टेंस व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस यू हैव फेस्ड वेरी बैड सर्कमस्टेंसेस मेरे भाई को बड़ा भाई को टीबी हुआ था 80s में टीबी बहुत बड़ा कंप्लेंट है वो कंप्लेंट था डिसीज था वो यस और उसको टर्नर का काम करता था तो मुझे कंपलसरी पैसा चाहिए तो कुछ तो घर में पैसा तो उसको नौकरी लगा था वो 400 रुपये का था तो मेरा कॉलेज देखना बहुत मुश्किल हो रहा था तो फिर मुझे ये डैम अफेक्टेड हुए इसलिए वॉचमैन का नौकरी मिला तो 165 रुपीज़ मिलते थे तो मैं घर में 150 रुपये बोला था मेरे को पगार है मैं 15 रुपये देता नहीं था 15 रुपये हम लोग पार्टी करते थे पार्टी तो कौन सा पार्टी 15 रुपए से कौन सा पार्टी आता है हम लोग बनाना खाते थे बनाना खाते वही पार्टी है जिस भी वॉचमैन का पगार होता है उसमें सबको बनाना खिलाने का ओके तो तभी क्या 25 पैसे का कुछ एक बनाना आता था तो 10-15 रुपए में बहुत बनाना मिलता था ओके तो सब लोग हम लोग पार्टी सो आपसे बहुत मदद मिला घर को वो टाइम में हाँ 150 रुपये मिलता था तो डॉक्टर का ये कर रहा था फिर मैं क्लार्क बन गया 3 साल के बाद तब भैया का टीबी ठीक हुआ फिर वो चलते गया अच्छा बनते गए क्योंकि हमने कभी किसी कितने साल काम किया इससे वॉचमैन का काम 3 इयर्स वॉचमैन ओके फिर मैं एक 6 महीना क्लार्क का काम किया फिर मैं एज अ बैंक में क्लार्क काम किया बॉम्बे में 17 साल क्लर्क का काम तब भी मुझे एक्टर बनना था 20 साल के बाद मैं सक्सेस हो गया ओके तो पेशेंस एक्टर बनने के लिए कितना ज़रूरी है फिर मैं 500 फिल्म किया लेकिन मैं अगर क्या है मेरा नसीब यार मेरे को नहीं मिल रहा है काम ऐसा छोड़ देता तो कुछ नहीं होता ना लेकिन एक फिल्म हिट होने के बाद डायरेक्ट 10 फिल्म ऑफर हो गया फिर हर साल 15 फिल्म ऑफर होने लगा लेकिन एक कोशिश जारी रखनी चाहिए आपका पिताजी क्या कर रहा था ओके ये लैंड जब गया ना वो ब्रिज की डैम का वजह से गया था तो वो टाइम में पिताजी क्या कर रहा था वो खेती कर रहे थे तभी क्या हुआ था मेरे पिताजी मैंने बोलता हूँ हमेशा मेरे माँ और मेरे पिताजी जितना बड़ा यूनिवर्सिटी है विद्यापीठ जितना बड़ा कोई नहीं है ओके क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम में एक रूल आया था जो जमीन करता है उसका ही वो ये ओन हो जाता है ओन हो जाता है खुद हो जाता है तो हमारे पिताजी करते थे ज़मीन 10 एकड़ में 1000 मैंगो का तेलुगु में क्या बोलते हैं मालूम है उसको दुन्ने वाड़दे भूमि हाँ जो खेती बाड़ी करता है ना वो जमीन उसका है कसे मराठी में कसेल त्याची जमीन हाँ। जो करता है उसका ही जमीन उसके तभी मेरे फादर बोले गवर्नमेंट कुछ भी रूल लाता है ये 10 एकड़ कर रहा हूँ तो उनके बच्चों को क्या रहेगा तो मेरे फादर ने सिर्फ गांव में लिया नहीं जमीन ओके बोला कि मेरे को नहीं चाहिए हमारी माँ बहुत झगड़ा करती थी कि तुम पागल हो गए मेरे बच्चे कैसे जिएंगे क्या करके बोले नहीं मेरे को नहीं चाहिए तो गया फिर भूकंप हुआ था अर्थक्वेक 69 में महाराष्ट्र में तभी घर गिरा था लातूर नहीं कोयना डैम का अर्थक्वेक हुआ था तो तभी
गवर्नमेंट घर गिरा था, हमारा हाउस गिर गया था, तो गवर्नमेंट वो कुछ एक बार वो डैम डैम, में गया, एक बार भूकंप हुआ था। भूकंप हुआ था, तभी गवर्नमेंट कुछ पत्रा दे रहे थे, तो मेरे फादर बोले कि भूकंप क्या गवर्नमेंट में किया है क्या, और क्यों क्या गवर्नमेंट की वजह से हुआ है क्या, वो क्यों उनका सपोर्ट लेने का, नहीं चाहिए मेरे को, मेरा घर है, मैं फिर से बांध दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। आपका पिताजी ऐसा बोला था? तो वो सुनता था, तो वो मेरे दिमाग में ओके, आप ऐसा बड़ा हुआ, वो विद्यापीठ से, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, मेरा मैं बनाऊंगा, मैं जो भी हूँ। इसलिए आप वॉचमैन का काम कर सका था, हाँ, वो माइंडसेट्स की वजह से, है कि नहीं? मेरे फादर बोलते थे डॉक्टर के पास मत जाओ, वकील के पास मत जाओ, लॉयर के पास मत जाओ, किधर भी मिलेगा रोजी रोटी खा जो के मिलेगे वो खुश खाओ, रहो। सो जाओ। हाँ, तो मेरे को कुछ ऐसा नहीं कि मेरा ये करियर बना है, मेरा ये इमेज बना है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, यार क्या है, कौन 10 रोटी खाता है क्या तुम्हारे पास, ये सब मेरा तेलंगाना मेरे नाम पे है, तो क्या मैं बस 50 रोटी खाऊंगा क्या, वो ऐसा वो तो नाम आपका- पे है सिर्फ, Yes, उधर का लफड़ा है सिर्फ, जो हाँ उधर है लफड़ा, एग्जैक्टली जो सोच रहा था ना वही लफड़ा है। दिमाग का खेल का लफड़ा है, और कुछ यस नहीं है। यस एग्जैक्टली करेक्ट। सो आप वॉचमैन क्लर्क के ये कब उनका आपका दिल में ये एक्टिंग बनने के लिए, एक्टर बनने जब मैं के लिए? वॉचमैन था, जब मैं कॉलेज में गया था, तो वन एक्ट प्ले में काम ये करता था, वॉचमैन काम करते वक्त आपका उम्र कितना है? और 17, 18, 19, 17, 18, 18। 10th स्टैंडर्ड में 15, 16, फिर डीएड किया था मैं 16, 17, 18, 19, 20, तभी मैं ग्रेजुएट हुआ, बिलो 20। बिलो 20। Okay. तभी मैं एक शंकर पाटिल करके प्रोफेसर थे, उनके घर गया था, तो वन एक्ट प्ले एक्टिंग में काम करने का ऐसा देख रहा था, तो उधर एक बुक मिला, तो वो अभिनय साधना, जो एक्टर्स प्रिपेयर सानेस्लिव का ट्रांसलेशन था, वो हाथ में मिला और मेरे को जैसे पागल जैसे हो गया, मैं बोला, क्या वो ऐसा बन सकता है एक्टर करके? हाँ, फिर मैं पढ़ना शुरू किया 5 साल तक मैं सब बुक उनका ये करता था, तब मैं वॉचमैन भी था, क्लार्क भी बन गया, लेकिन मेरा पूरा कंसंट्रेशन वो बुक पे था। ओके, तो जब भी मैं जाऊंगा, मैं 2 सेंटेंस दिमाग में रखा था, बॉम्बे जाता था, वेल बिगन इज हाफ डन वेल बिगन इज हाफ डन, एग्जैक्टली। एंड हैस्टी क्लाइंबर्स हैव सडन फॉल, हाँ, हैस्टी क्लाइंबर्स हैव सडन फॉल, Okay. जो जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं वो जल्दी 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 गिर जाता है। तो वो दिमाग में था, तो धीरे से काम शुरू किया, वो था, भले 20 साल लगे, लेकिन जब मैं शुरू हो गया तो सब लोग बहुत पसंद करते हैं अभी। ओके ओके, अभी आप एक बार एक्टर बन के इतना विक्ट्री हासिल किया है ना, हाँ? अभी आपका पेरेंट्स और ब्रदर और आपका बचपन का फ्रेंड्स और वॉचमैन काम करते वक्त जो फ्रेंड्स बन गया, वो लोग सब लोग कैसे आपका सक्सेस कैसे मानते हैं ये लोग? अभी मैं वो मेरे वॉचमैन करके दोस्त था, उसको मैं टीवी इंटरव्यू में लाया था, तो चल मेरे साथ। ओके, अभी मैं एक यूट्यूब पे एपिसोड बनाया है, मेरा एक सयाजी शिंदे एपिसोड यूट्यूब चैनल है, वो आप देखिए, उसमें मैं मेरा 7th स्टैंडर्ड तक का जो दोस्त था, उसको मैं अभी चीफ गेस्ट करके गया था एक कॉलेज में, उसको लेके गया था, तो उसको बॉम्बे दिखाया पूरा, उसके साथ गांव में खेत में गया, तो वो अभी 10 लाख लोगों ने पसंद किया उसको। ओके, तो अभी भी मेरे टच में है वो, ओके, अभी भी वो मेरे साथ ऐसे दोस्ती जैसे बात करते हैं। सो यू आर अ गुड फ्रेंड। हाँ, वेरी बहुत अच्छा दोस्त है आप। हाँ, हैं? अभी भी वो मुझे कैसा बिहेव करने का बताता है। ओके, वो बोलते हैं आपको? हाँ, उतना हमारा इतना रिश्ता बॉन्डिंग है। bonding है really, but it is a very nice thing, you know, once you grow up in life, you know, normally people forget the bygone days. Yeah. You know, they don't want to reveal that they have been a watchman at one time and they have lost everything and they strived for food, bed and shelter and everything. People are not ready nowadays in the world of the entire hypocrisy. लोग ने इतना प्रिपेयर नहीं है बताने के लिए, लेकिन आप रियली आई अप्रिशिएट यू, लेकिन आप कुछ ना दिल में नहीं रखते हैं, पूरा आप बता रहे हैं ऐसा कितना आप मुश्किल उठा के जिंदगी में यहाँ तक आ गए ना, दैट्स फैंटास्टिक। अभी पिक्चर में भी मेरा बॉय, मेकअप मैन, ड्राइवर, हम लोग अलग अलग नहीं बैठते, ओह, हम लोग खाना साथ में खाते हैं, साथ में जीते हैं, उनका घर का प्रॉब्लम मेरा क्या है, जिधर भी जाओ। अभी मैं बोला ना चैनल, एक मैंने इंटरव्यू किया है शेफर्ड लोगों का, ओके, ऐसे ही गया, वो उनको मैं मिला,
तो उनका एपिसोड भी इतना पसंद आया लोगों को, तो उनको मैंने बोला कि तू किधर भी डॉक्टर लगेगा, किधर भी क्या करेगा, किधर शूज़ लगेगा, मेरे को बोल। तो कौन बड़ा क्या होता है मेरे को समझाओ मुझे कि बड़ा कैसे होता है। आदमी ऑक्सीजन ही लेता है ना, खाना ही खाता है ना, खाना ही खाते हैं। आप सो ही जाता है ना, जैसे बोले ना 25 रोटी नहीं खाते। नहीं खाता ना। और ऑक्सीजन के सिवा ऑक्सीजन फ्री में रहता है ना, वो पेड़ से अपने आप मिलता है ना। तो घमंड किसकी, क्यों घमंड क्यों? लेकिन ऐसा नहीं रहता ना साहब। आप जैसे आप ऐसा सोच रहे हैं, आपका दिल वैसा है करके आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसा तो नहीं है ना। कैडर्स रहता, ऑर्डर्स रहता, ग्रेडेशन रहता, हायरार्की रहता, बहुत रहता है ये जिंदगी में। वो दिल का लफड़ा है, आप माइंड का लफड़ा है। आप जो बोले वो तो सही है। थोड़ा सा क्या है, अंग्रेज लोगों ने लाया, ये प्रोटोकॉल लाया, प्रोटोकॉल है, तुम ऐसा बिहेव करने का, तुम ऐसा करो, ऊपर करो। इसी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है ना। बहुत नुकसान। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, अगर डिस्ट्रिक्ट का है, वो अगर गलत बोला तो नीचे वाले को सुनना पड़ता है, वो नहीं सुनता तो उसका रिपोर्ट खराब जाता है। तो इसमें गलती होती है ना। ओके, यस यस। अभी आपका एक बार एक्टर बनने के बाद इतना सक्सेसफुल ट्रैवल आपका एक्टर का, उधर महाराष्ट्र, हिंदी, तमिल, तेलुगु पूरा, अब इतना मशहूर बन गए हैं ये देश में। यू नो, इफ़ यू रियली रिकलेक्ट, एक बार पीछे मुड़ के सोचने पर, व्हाट आर द बेस्ट मोमेंट्स इन लाइफ? इतना अच्छा इंसिडेंट्स जो दिल में रहता ना, बोलने के लिए इमीडिएट कौन सा याद में आता है? ओ ऐसे नहीं, अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ना, पेड़ लगा रहा हूँ, जिधर मैं मेरे एक फ़ोन की वजह से 15,000 पेड़ एक पहाड़ पे लगे। और ये पहाड़ मैंने 5 साल पहले देखा और अभी का देखा, तो मुझे जो खुशी मिलती है, तो वो मैं ये पेड़ 15 साल के पीछे देखा था आप? नहीं, 5 साल पहले एक पहाड़ है जिसके ऊपर कुछ नहीं था, पहाड़ है जिसके ऊपर कुछ पेड़ नहीं है, और अभी लगाया है। तो वो देखने के बाद जो खुशी मिलती है, दैट इज योर बेस्ट मोमेंट। नॉट इन सिनेमा, नॉट इन एक्टिंग। सिनेमा You are done with the greatest stars of this country, but still you are unable to recollect the best moment with them in नहीं, films. मतलब वो क्या स्टार, मतलब सब लोग बोलते हैं स्टार, तो तुम बनो स्टार। मैं इसलिए मैं बोलता हूँ, तुम छाव देते हो क्या? कौन सा बड़ा स्टार है? तुम फल देते हो क्या? तुम्हारे पास पैसा जाए। You are completely taking side of trees and Yes. plants and seeds. नहीं, क्यों सच है ना, मुझे बताओ ना। लोग को आप नहीं मानते हैं। मैं तो सबको मानता हूँ ना, मैं पंछियों को मानता हूँ। मैं ये अपना बॉय है, तो वो भी इतना ही बड़ा है मेरा बॉय। अभी 4 करोड़ की गाड़ी है, तो ड्राइवर थोड़ा कम होता है, तुम्हारी ज़िंदगी वो लेके जाता है ना, तो उसको कैसे तुम गाली दे सकते हो, कैसे कम बोल सकते हो? कम नहीं देख सकते हो। हाँ, सब अपनी अपनी जगह पे बड़े हैं। ओके ओके। मतलब मैंगो बड़ा है तो जो ग्रास आता है ना, वो भी बड़ा है। क्या आपका दिल में कभी आने वाले दिन में कोई पॉलिटिशियन बनने का इरादा है क्या? नहीं, वो क्या नहीं, जो काम, ये ऐसा काम जो लोगों के दिल में रहता है ना, ऐसा इरादा वो करता है। मैं पॉलिटिशियन नहीं बनूंगा, लेकिन पॉलिटिशियन लोगों ने मुझे अगर वो अपॉइंटमेंट करते ना, क्या बोलते हैं उसको, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ये काम करने के लिए मुझे कुछ अधिकार देंगे, कुछ फॉरेस्ट कमिश्नर, फॉरेस्ट या ऐसा कुछ बनाएंगे तो मैं ज़रूर बनूंगा। लेकिन इलेक्शन को जाके ये बुरा है, ये अच्छा है, उनका गलत है, मतलब जो सही है उसको भी गलत बोलना पड़ता है ना पार्टी में आने के बाद। तो वो क्यों करूँगा ना, अच्छे को अच्छे बोलूँगा, बुरा को बुरा बोलूँगा। नहीं, उधर आपका महाराष्ट्र में आप इतना मशहूर बन गए ना, आप जितना मशहूर हुआ था, एक पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको जो फेम एंड नेम है वो तो काफ़ी है, बस है अभी, बस है। हाँ, इससे ज़्यादा है। एमएलए से ज़्यादा मैं फेमस हूँ। That's what I'm saying. उसको और महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं, कोई आपको इतना खींचा नहीं है पॉलिटिक्स में, आ जाओ तुम ये बनो। हाँ, बहुत बात बोले ना, पार्टी बोलती है कि आपको ये टिकट मिलेगा, ये टिकट। मैंने बोला कौन सा पार्टी इतना फोर्स कर रहे हैं आपको अभी? नहीं, मैं क्या बोला, पक्ष, मराठी में क्या बोलते हैं, पक्ष, पार्टी। यस। तो मैं बोलता हूँ मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ, जो पक्षी है, पंछी है, उनका मैं हूँ, वो पार्टी का मैं हूँ। जो पेड़ के ऊपर पंछी जो हमेशा उड़ते रहते, किसी को नहीं मिलता है, हाँ, दूर रहता है सब लोगों से। और क्या सभी पार्टी मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सपोर्ट करती है, मैक्सिमम ऑफिसर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो सिर्फ यही काम करना है। आप अगर
चीटर है, भ्रष्टाचारी है और कुछ कर रहे तो भी मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्या लेके जाने वाले हो साथ में? वो पेड़ तो रहने वाला है ना। तो नहीं, लेकिन आप पॉलिटिक्स में आके एक बार पावर में आ जाएगा ना, तो ज़्यादा अच्छा काम करोगे। जो आप करने का सोच रहे हैं, लेकिन और किसी को जाकर रिक्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, मौका देख रहे हैं, आप खुद बन जाएगा ना एक बार, वो चीज़ आसान बन जाता है ना। बहुत आसान बन जाता है। लेकिन वो तरफ तुम आप कभी नहीं सोच रहे, पॉलिटिक्स को दूर रखते हैं। दूर नहीं रखता हूँ मैं। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो नर्सरीज है उसमें जो फॉरेन पेड़ है सब वो निकालने की कोशिश किया और वो सक्सेस हो गया। तो अगर मेरे को राइट्स मिलेंगे कोई भी तेलुगु तमिल कोई भी गवर्नमेंट में, तो मैं वो काम बहुत अच्छा करूँगा। मैं सभी नर्सरी चेंज करूँगा, सभी स्कूल को, टेम्पल को वो कानून से प्यार से पेड़ लगाने के लिए बोलूँगा और उसमें सबका फ़ायदा देखूँगा। ओके, वेरी नाइस। आप अभी पॉलिटिक्स में भी आपका ये है, एक्सपीरियंस है। हाँ। ऑफ कोर्स यू आर नॉट एंटरिंग इनटू दैट, बट यू आर नॉलेजेबल इनफ। Yeah, सब लोग सब चीज़ आपको मालूम है। सिनेमा में है पूरा सिनेमा, ये दोनों पार्श्व देखते वक्त आपको क्या लगता है विच इज़ ए बेटर एरिया, सिनेमा और पॉलिटिक्स? नहीं, क्या है ना, सिनेमा, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट ये अपने इंडिया के 3 डिसीज़ है। बिकॉज इंडिया पीछे है। 3 डिसीज़ है, Okay. रोग है जिसकी वजह से इंडिया पीछे है। क्योंकि नेचर को जितना प्रोमिनेंट करना चाहिए उतना नहीं किया, जितना क्रिकेट के करते हो, जितना सिनेमा को करते हो। 150 करोड़ का सिनेमा बनता है और गिर जाता है तो क्या फ़ायदा? 150 करोड़ का एक पेड़ में देंगे, लगाएंगे पेड़ के बारे में, नर्सरी के बारे में, तो कितना बड़ा बनेगा। आप कैसा ऐसा बता सकते हैं? आप खुद ही एक सिनेमा एक्टर हैं। हाँ, इसमें जीते हैं। हाँ। इस पे पूरा जिंदगी इससे चलाते हैं। ऐसा कैसे बता सकते हैं? लोगों को आप भुलाते हैं ना, लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं आप। आपकी ज़रूरत नहीं तो भी आपको क्यों 50 करोड़ लेते हो, क्यों 500 करोड़ लेते हो? अच्छा लेते हो तो क्या करते हो? फार्म हाउस बनाते हो, उसमें 100 करोड़ डालते हैं। ये तो बिजनेस है ना। हाँ बिजनेस है, लेकिन वेस्ट है ना। मैं वही बोल रहा हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, तुम जाने वाले हो ना। तुम अगर स्टार बनने से 500 साल जीने वाले हैं क्या? नहीं ना। तो अच्छा कुछ करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग के लिए, नेचर के लिए, मतलब अभी जो टाइगर होगा ऐसा होगा ऐसा, या कितनी प्रजाति खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो वो तुम कौन होते हो राक्षस जैसे बिहेव करने वाले? सो अगर आप पॉलिटिशियन बन गए हैं, समझो विच इज बेटर, एन एक्टर और ए पॉलिटिशियन? हु इज बेटर? एक्टर। व्हाई? बिकॉज वो पूरा जो चल रहा है समाज में, दुनिया में, उसका मिरर है। वो जो अच्छा बुरा दिखा सकता है। पॉलिटिशियन को क्या है, उनको फॉलो करना है, जीतना है, उनको कुछ भी करके जीतना है। झूठ बोलो तो भी जीतना है। अभी जैसा आप बोले ना, अच्छा आदमी को भी गाली देना पड़ता है। तो एक्टर के लिए वो करने की जरूरत नहीं। वो खुशी हुए, इंटरटेनमेंट आर्ट फॉर्म है। आर्ट फॉर्म में इंटरटेनमेंट रूप है ये। तो लोगों को खुशी तो मिलता है। खुशी तो खुश कर सकते हैं ना, खुश कर सकते हैं, दूसरों को खुश कर सकते हैं। सो यू ऑलवेज प्रेफर टू बी एन एक्टर, नॉट ए पॉलिटिशियन। मुझे कितने टाइम बोला कि तुम जितना कमा सकते हो इतना, तुमसे कम वाले एक्टर बहुत कमाते हैं, ऐसे बोलते। मैंने बोला क्या लेके जा रहे हैं, मेरे को नहीं करना। क्या आप कभी नहीं डिमांड किया? नहीं, मैं बड़ा वो जो चल रहा है डिमांड, ये इतना दे दो उतना दे दो करके कभी डिमांड नहीं है? चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हाँ। ज्यादा उसमें जाता आपका मैनेजर भी कभी नहीं बताए, अरे हम डिमांड करेंगे, इंक्रीज करेंगे? मैनेजर चेंज करते हैं, चीटर लोग मिलते हैं, उनको चेंज करना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है। छोड़ दो, चलो। ऐसा हुआ था? हाँ होता है ना। आपका अभी इतना बिजी बन गए हैं एक्टर का, एक्टर बनने के बाद आपका शादी हुआ था एक पहले एक शादी हुआ था, एक्टर बनने के बाद एक शादी हुआ मेरा। हो तो पहले मेरा वो बैड एक्सपीरियंस है वो सब। कैसा? आप इतना सोच के काम करने वाला आदमी की जिंदगी में कैसा ऐसा गलत हुआ था सर? नहीं, क्या मेरे फादर जब 80s के थे तभी उन्होंने बोला था कि ये शादी करो, तो किया, वो चल रहा था। लेकिन मेरा एक बच्चा उसमें वो गलत, बिकॉज ऑफ दैट वाइफ बिहेवियर, वो गया था पानी में, डूब के मर गया था। तो मेरा वो
पहले वो आदमी की वजह, औरत की वजह से, हाँ हाँ वो गलत की वजह गलती की वजह से। तो मैं मुझे बहुत सेटबैक हो गया मैं, से। अयो, ओके। तो मेरे 2-4 साल उसमें गया। तो फिर मैं रिकवर हुआ, दूसरी एक लड़की है ज़िंदगी में आ गई, फिर सेटल हो गया और अभी ठीक है। सेकंड लव मैरिज, हाँ फर्स्ट अरेंज मैरिज, हाँ हाँ सेकंड लव मैरिज। या ओके, आपके स्टिल यू आर इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट वाइफ? नो, या यू आर। अब वो नहीं, पहली लड़की थी ना, उसके कांटेक्ट में हूँ, उनका सब सेटल करके दिया है, वो अभी सेटल उनका शादी भी करा दी? सेटल कर बच्चों सब अच्छा है। अभी सेकंड फैमिली, बच्चे हैं? अभी एक बच्चा है। एक बच्चा है। ओके, सो देखो, सोचने वाले को बहुत एक्सपीरियंस देता है भगवान। ऐसे नहीं, जो सोच के नहीं करता ना, सोचता नहीं ये काम कर में, उनका जिंदगी ऐसा सीधा चला जाता है। जो सोचेगा, दिल से सोचेगा, उन लोगों का ऐसा मुसीबत कभी कभी आता है जिंदगी में। ऐसा आप कैसे देखते हैं इसको? जो प्लान करके होता नहीं है और प्लान बिना कुछ होता नहीं है, लाइफ ऐसा है। ओ, फैंटास्टिक। प्लान किया तो वैसा होता है, नहीं होता है, और प्लान नहीं किया तो हो जाता है, ऐसा भी नहीं। लेकिन 50-50 चलते रहो। बहुत ब्रिलियंट आदमी है सक्सेसफुल नहीं होता, और बहुत हार्ड वर्कर आदमी सक्सेस नहीं होता। यस, 50% हार्ड वर्क, 50% टैलेंट। that is why people say all the wise may not prosper, हाँ all the prosper need not be wise। बोलते हैं इंग्लिश में, correct। है कि नहीं? या आप अब अगर आपका बारे में आप खुद बोलने का जरूरत आएगा तो क्या बोलेगा आपके बारे में? आप यू आर इन लकी पर्सन नहीं और मैं ए मेरिटेड पर्सन, टैलेंटेड? नहीं, मैं ये बोलूँगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ। टैलेंट नहीं है, लक नहीं है, मैं अच्छा हूँ, जिधर भी हूँ मैं सच्चा हूँ। ओके। आपके कभी बैड कमेंट नहीं लिया किसी से? बैड क्या? कमेंट्स अपने, क्या है तुम, क्या कर रहा है तुम, कब बोले, कब आए तुम, ऐसा कुछ नहीं? इंसिडेंट्स, एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में? मेरे गुरु थे, उन्होंने पहला जब ड्रामा सीखता था तो मैं 6:10 में आया था। तो मुझे बोला आप कितने बजे आने का था? मैंने बोला 6 बजे। तो अभी क्या हुआ? बोले 6:10, 5:50 को आना चाहिए, 10 मिनट पहले आना चाहिए। तो मेरे इतने दिमाग में वो फिट बैठा है ना कि मैं दूसरे लोग रिकॉर्ड आए हुआ नहीं। था उसका? हाँ, मैं अपनी जगह पे जाता हूँ, टाइम पे काम करता हूँ, और वो कुछ टैलेंट की बात नहीं है, ओके, सिंपल बात है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका जो द वे यू आर थिंकिंग अबाउट थिंग्स एंड द वे यू आर लुकिंग एट थिंग्स, यू नो। आपका कितना तक पढ़ा था आप? मैं ग्रेजुएशन हो गया, मैं 10th स्टैंडर्ड में था। घर की परिस्थिति बहुत ख़राब थी, भाई को प्रॉब्लम था, छोड़ मैंने दिया? बोला डीएड किया और अब टीचर का काम करूँगा। तो टीचर का नौकरी नहीं मिल रहा था, तब तक वॉचमैन का नौकरी मिला, तो मैंने वॉचमैन का नौकरी ज्वाइन किया। फिर मेरा एक दोस्त बोला तू ले रही कॉलेज में एडमिशन, क्या करने का? मैंने चल लिया। तो मेरे एक अंकल थे, तो 64 रुपीज़ कुछ फॉर्म फी थी, तो मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं, मेरे को नहीं सीखना है। तो बोले ये ले 100 रुपया। तो मुझे 46 रुपये तो बच रहा है अपने को। 64 भरते हैं, फिर 46 रुपये। तो एडमिशन लिया और मैं गया वॉचमैन करके। तो मेरे दोस्त ने भरा कि फॉर्म फी भरा है तो तू चल बैठना। तो उन्होंने हम लोग लास्ट के 15-20 दिन में स्टडी किया, मैं परीक्षा को, एग्ज़ाम को, और हो गया पास। तो अगले साल भी ऐसे ही किया, ध्यान है, मराठी सब्जेक्ट लिया था, तो हो गया ग्रेजुएशन, हो गया। फिर नौकरी मिला ग्रेजुएट होने के बाद क्लार्क का, फिर शादी हो गया, फिर बॉम्बे गया। फिर मैं उधर बहुत स्टडी किया, वर्कशॉप्स किए, एनसीपी में वर्कशॉप किया, अशोक रानडे, वामन केंद्रे, अरविंद देशपांडे, वहाँ माधव वाटवे, ऐसे बड़े बड़े एक्टर को मैं ऑब्जर्व किया। नीलू फुले को बहुत मैं फॉलो किया, नाना पाटेकर तो आप बड़े थे। थिएटर की एक्टर्स को बहुत फॉलो करते हैं? हाँ, थिएटर में 20 साल थिएटर किया। नॉट नो सिनेमा नो एक्टर्स, नो, कोई इंस्पिरेशन भी नहीं है नहीं आपको सिनेमा इंडस्ट्री में, No, बॉलीवुड में? नहीं 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 हो अमिताभ बच्चन, नहीं नहीं देवानंद, नहीं नहीं, और वो कोई नहीं, तभी दिलीप मैं उनको कुमार? ज़्यादा नहीं मानता था, हो मुझे पिक्चर में जाना भी नहीं था। 20 साल में थिएटर किया, फिर मैं तेलुगु में आपको मालूम है एनटीआर, ये मालूम है, नागार्जुन सर फादर, बालकृष्ण सर फादर, देर ऑल लेजेंड्स। हाँ, डू यू नो अबाउट देम? मैं देखा नहीं उनका, ज़्यादा सुना है उनके बारे में।
मतलब नागार्जुन साहब के फादर एक चीफ गेस्ट आए थे, तो मैं नया नया इंडस्ट्री में आया था, तो उन्होंने माइक पे बताया कि मुझे फेवरेट एक्टर मेरे सयाजी शिंदे है। मुझे मालूम है वो मुझे नहीं जानते, मैं सामने बैठा था। काम नकने नहीं सर। हाँ, तो उनका 75 हीरो करके फिल्म रोल किया था, तभी मैं 75 इयर्स। या ऐसा कुछ उस प्रोग्राम के भी मैं आया था। ओके ओके। सो अभी इतने साल से इतनी फिल्म किया है, जो कैरेक्टर्स किया है, सब पूरा ज़िंदगी पसंद किया है, थोड़ा आपको ये क्या है, वो ये कैरेक्टर है, सेम कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर आ रहा है, मेरे को कोई डिफरेंट कैरेक्टर मेरे को नहीं मिलता है, जो हमका हमारा ताकत दिखाने के लिए ऐसा कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, ऐसा सोच कभी लगा आपको? आई एम हैप्पी बिकॉज मैंने बहुत चैलेंजिंग रोल किए हैं। अभी वही सेम रोल आते हैं। डायरेक्टर 2 लाइन बोलने से पहले मुझे पता चलता है ये रोल क्या है, फिल्म क्या है, उसमें क्या दम है, सब पता चलता है। तो वैसे नहीं, फिर भी मैं अभी समझो अभिलाष के साथ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, सुधीर बाबू, वो हमेशा कन्फ्यूजन होता है। यस। सुधीर बाबू और अभिलाष के साथ जो मैं फिल्म कर रहा हूँ, तो वो पहली फिल्म है उनकी, तो पुराने से पुराने डायरेक्टर के साथ भी काम कर सकता हूँ, नया से नया भी डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ। नया डायरेक्टर को भी लगता है कि आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड गुड टैलेंट, गिव दैट फीलिंग टू देम, तो वो मुझे लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ महाराष्ट्र में भी नए डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ, तेलुगु में भी काम करता हूँ। तो मैं रेंज और वो सम्मान सबको संभाल के रखा हूँ कि किसी को भी मेरे तकलीफ नहीं। ये बड़ा है, छोटा है, अब नहीं होता ही नहीं है ना, इसलिए। सो ऐसा सिचुएशंस आपको आ गया जो वेयर यू रिजेक्टेड कैरेक्टर्स, रिफ्यूज टू डू दिस, ए वेरी रूटीन, दिस इज ए रेगुलर कैरेक्टर आई बीन डूइंग, इतने साल से ही कर रहा था ये ऐसा कैरेक्टर, ये मेरे को नको, मैं नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता है। वो प्रोजेक्ट बराबर नहीं है तो मैं नहीं लेता हूँ, लोग बराबर नहीं है तो नहीं लेता हूँ। अदरवाइज कैरेक्टर प्रोजेक्ट होता है ना, सेम पॉलिटिशियन का 10 बार किया तो 10 टाइप कर सकता हूँ ना मैं। यस, अभिनय साधना। हाँ, इंग्रेडी बर्गमन का बारे में बोला था, उनको कुछ ऐसे हॉरर रोल थे, हर बार वो कुछ अलग करने की कोशिश करते थे। तो तभी मैं इंग्लिश एक्टर लोगों का भी बहुत स्टडी किया था। हम लोग, जब मैं वॉचमैन था, नहीं जब मैं बॉम्बे आया, तो हम लोग अल पचिनो, रॉबर्ट डी निरो, ग्रेटा गार्बो, ये ऐसे सब लोगों के 5-5 फिल्म लेके वर्कशॉप करते थे और उसके ऊपर नोट्स निकालते थे। आज सिर्फ एक्टिंग के बारे में बोलना, आज सिर्फ डायरेक्शन के बारे में, वो प्रैक्टिस आपको मदद करते थे। तो ऐसा नहीं कि रिपीट कोई नयापन किसमें भी है, रोज दिन वही आता है ना, लेकिन रोज फ्रेश लगता है ना। तो ऐसा थोड़ी रोज साला दिन उगता ही है तो मैं कैसा जीऊँ, ऐसा थोड़ी होता है यार। साला दिन तो रोज निकलता है, तो रोज नई तरह से जियो ना। यही तो लाइफ का है ना। यस, यू हैव फंडा होना चाहिए, यू हैव टू मेक इट न्यू। या इसको नए से हम बनना क्या, जो हो गया भूल जाओ, यस्टरडे को भूल जाओ, आज नया है, खुश रहो और जिंदगी जियो और सबको खुश रखो। फैंटास्टिक सर, रियली आई लव योर माइंडसेट। थैंक यू। आप जो दिल है ना, दिल की बात है, दिल की सोच है, मैं बहुत पसंद करता हूँ और प्यार करता हूँ रियली। एंड फैंटास्टिक, योर ट्रैवल इज़ गुड, योर स्टार्टिंग बिगिनिंग, वो वॉचमैन के काम, बाद में क्लर्क का काम, बाद में एक मैं शादी, बाद में एक्टर बन गया और मल्टी लैंग्वेज एक्टर बन गया आपने। स्टिल यू आर सक्सेसफुल एंड फेमस। वेरी नाइस सर, रियली आई ड्रीम, विश यू all the very best and all the coming years should be very healthy for you and prosperous रहना चाहिए आपको। आपका साथ आई ड्रीम कभी भी रहता है। आप आई ड्रीम को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी लोग हैं अपने एज इतना पेड़ लगाओ, क्योंकि जन्म से अपने एज तक हमेशा डेली ऑक्सीजन ले रहे हो, अनाज खा रहे हो बिकॉज ऑफ पेड़। तो इतना तो मान लो कि पेड़ के बारे में अपने एज जितना पेड़ लगाओ। और तेलंगाना गवर्नमेंट, KCR रेड्डी साहब को और सबको मैं विनती करूंगा, आई ड्रीम्स मेरे को सपोर्ट कर रहा है, वो मेरे साथ है, इंटरव्यू में उन्होंने बोला है, मैं बोल के रखता हूँ। तो हम लोग पेड़ के बारे में अच्छा काम करेंगे, जो बड़े पेड़ है उनको काटेंगे नहीं, नए पेड़ को लगाएंगे और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे और सबको खुश रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ఇది మన ది వండర్ఫుల్ అండ్ వెర్సటైల్ డిఫరెంట్ పర్సన్ అండ్ డిఫరెంట్ యాక్టర్ శ్రీయాజీ షిండే గారి తాలూకా అనుభవాలు, అభిప్రాయాలు చాలా చాలా విచిత్రంగా, చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కదా.
ఎంజాయ్ చేయండి. వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్. థ్యాంక్ యూ.